our topic. Now, why there is a need to prepare a final account? So we can say that to know the financial position, to know financial position, to know financial position of a business on a particular date, there is a need to prepare a final account. So we can say in preparation of final account, it includes, first is our trading account. What is trading account? Second account is our profit and loss account. We can say P&L account. And one more is our balance sheet. Balance sheet. So to know the financial position of any firm, we are talking about here is a partnership final account. So to know the financial position of firm, we need the two accounts and one balance sheet. Name, trading account, profit and loss account, and finance and balance sheet. Now move to one by one. What is a trading account? Trading account is a nominal account. इसको हम लोग nominal account भी बोल सकते हैं. It is a nominal account. Profit and loss account is also a nominal account. Trading account. First account is trading account. It is a nominal account. Nominal account. As we know, what is the golden rule of nominal account? Golden rule हम लोग का क्या है nominal account का? Debit all the expenses and loss and credit all the income and profit. Credit all the income and profit. Now trading account. Trading account means all direct expenses. We can say all direct expenses. All direct expenses includes in our trading account. Direct expense means what? Directly related to production of goods and purchase of goods. Directly, आप other words में भी बोल सकते हो, directly related to production of goods and purchase of goods. Trading account, nominal account, all direct expenses. Direct expenses mean directly related to production of goods and purchase of goods. For example, आप ले सकते हो wages, carriage, freight, manufacturing expenses, जितने भी डायरेक्टली जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं. नाउ मूव टू द व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इट इज. दिस इज अ परफॉर्मा ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट मैंने क्या बोला? टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस and in credit side like sales, आप बोल सकते हो goods destroyed by theft, fire, good destroyed by theft or fire, goods distributed as sample. तो ये सारे ट्रांजेक्शन और ये सारे एंट्री क्रेडिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. नाउ इफ डेबिट साइड इज मोर, इफ मैंने क्या बोला? इफ डेबिट साइड इज मोर, इट मीन्स एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस इनकम कम हो रहा है. सो इन दिस केस इट इज़ अ ग्रॉस लॉस. But if credit side is more than debit, income मेरा ज़्यादा है, expense कम है. In this sense, it is a gross profit. Now, this gross loss or gross profit
is transferred to our profit and loss account. Now move to the profit and loss account. Here is also debit and credit. It is a continuous of trading account. So मैंने क्या बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यहाँ पे ट्रांसफर होगा. इफ इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा. इफ इट इज अ ग्रॉस लॉस तो आपका ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफर होगा. नाउ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it is also a nominal account. Profit P&L account is also a nominal account. It is the continuation of trading account. All indirect expenses, that is revenue expense of current year, transfer to the debit side. मैंने क्या बोला, जितने भी indirect expense है, that is revenue expense. All indirect expense transfer होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में. एंड ऑल इनडायरेक्ट प्रॉफिट, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर होंगे क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट ऑफ द पर्टिकुलर करेंट ईयर ओनली. मैंने ये दोनों करेंट ईयर के ही ट्रांसफर किए जाएंगे. इन ऑल्सो देयर इज अ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड, इफ डेबिट साइड ग्रेटर है, if debit side is greater than credit side, then it is a net loss. If debit side is greater than credit side of profit and loss account, then it is a net loss. And second condition, credit side greater है, means income ज़्यादा है expense से, तो यहाँ पे हमारा आता है net profit. This net loss और net profit is transferred to balance sheet. ये ट्रांसफर किए जाएंगे बैलेंस शीट में. प्रॉफिट इज देयर तो इट इज एडेड टू द कैपिटल. इफ लॉस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे कैपिटल से. प्रॉफिट प्लस किए जाएंगे एंड कैपिटल से, एंड लॉस रहेगा तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे कैपिटल से. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट वी से, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टू सैलरी एंड वेजेस, to general expense, to postage and telegram, to electricity charges, depreciation, export duty. इस टाइप के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये पोस्ट किए जाएंगे डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिमिलरली क्रेडिट साइड में इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, लाइक इफ इट इज़ अ प्रॉफिट जो ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, सो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट रिसिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जितने भी इनकम के हैं इनडायरेक्ट इनकम रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इट विल पोस्टेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ मूव टू आवर लास्ट अकाउंट, दैट इज आवर बैलेंस शीट. इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी शुड मेक बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमेशा लास्ट डेट में बनता है, दैट इज 31st March. ईयर इज डिफरेंट. नाउ इन द लेफ्ट हैंड साइड liabilities, capital and liabilities, and in the right hand side it is assets. In the liabilities there are fixed liabilities भी fixed liabilities अब जाएगा, current liabilities and contingent liabilities. ये सारे ट्रांसफ़र होंगे liabilities side. contingent liabilities, fixed liability मतलब मैं हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल. ओके, current liabilities like sundry creditor, जो थर्ड पार्टी है, जो हमारे थर्ड पार्टी है, वे सारे करेंट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आप बोल सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे ट्रांसफ़र होंगे करेंट लाइबिलिटीज़ में. एंड थर्ड इज आर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में हमारे जाएंगे लाइक वर्कमेंस कंपनसेशन, जो डिपेंडिंग इन कोर्ट, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ये जितने भी हैं ये सारे लाइक वर्कमेंस कंपनसेशन ये ट्रांसफर होंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ मूव टू द असेट साइड. असेट साइड में भी देयर आर 3 टाइप. फिक्स असेट लाइक जो लॉन्ग टर्म है, लाइक अ मशीनरी, लाइक मोटर कार, फर्नीचर, ये सब ट्रांसफ़र होंगे फिक्स असेट में. लाइक करेंट जो चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लाइक अ कैश इन हैंड, इसको क्या बोलेंगे, करेंट.
लाइबिलिटी करेंट एसेट्स, कैश इन हैंड, आप बोल सकते हो सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे एंट्री, ये सारे ट्रांजेक्शन, सारे आइटम हमारे असेट साइड में जाएंगे. एंड ऑल्सो फिक्टिशियस असेट, एक और भी है जो फिक्टिशियस असेट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसको नॉट रियल असेट्स भी बोला जाता है. सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. We can, in one sentence, we can say balance sheet is a mirror of the financial position of the firm. Thank you.